हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 23 फॉर टीजीटी इंग्लिश. सो गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी and visiting first time on this channel, so you can subscribe this so that we stay connected. And now discuss practice paper 23. So the very first question of this practice paper is an interdisciplinary field that examine the political dynamics of contemporary culture, including popular culture and its historical foundation. So यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं: कल्चर स्टडीज़, प्रैग्मेटिक स्टडीज़, बायो स्टडीज़ या फिर कंपैरेटिव स्टडीज़. सो राइट आंसर इज ए. Culture studies is an interdisciplinary field that examines the political dynamics of contemporary culture, including popular culture and its historical foundation. Next है question number 2. In the later 19th century, some French proponent of the doctrine of aestheticism, especially Charles Baudelaire, also espoused views and values that developed into a movement called. ऑप्शंस हैं यहाँ पर एस्थेटिसिज्म, सिम्बोलिज्म, डिकाडेंस या फिर सरेलिज्म. ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में कुछ फ्रेंच समर्थक थे. सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके लिए एस्थेटिसिज्म, सिम्बोलिज्म, डिकाडेंस या फिर सरेलिज्म. राइट आंसर इज सी, डिकाडेंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. दिस टर्म इज अप्लाइड इन द क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेचर. It designates a theory and practice of reading which cautions and claims to subvert or undermine the assumption that the system of language provide ground that are adequate to establish the boundaries, the coherence or unity and the determinate meaning of a literary text. Options are reconstruction, deconstruction, difference or signifier. So right answer is B, deconstruction. Deconstruction की यहाँ बात हो रही है. Next है question number 4. As a term in literary criticism, it designates the view that there should be propriety or fitness in the way that a literary genre, its subject matter, its character and actions, and the style of its narration and dialogue are matched to one another. Chorus, decorum, decadence, surrealism. ठीक है, एज ए टर्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इट डेजिग्नेट द व्यू दैट देयर शुड बी प्रॉपर्टी और फिटनेस इन द वे दैट अ लिटरेरी जानर इट्स सब्जेक्ट मैटर. यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि वो टर्म, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर्टी और फिटनेस हो इस तरीके से कि जो सब्जेक्ट मैटर है किसी भी लिटरेरी मतलब वर्क, कोई भी लिटरेचर का वर्क है, उसका जो मैटर है उससे मैच करना चाहिए उसका स्टाइल. यानी कि जिस जॉनर में आप लिख रहे हो, जिस जॉनर में मतलब वो वर्क है, उस ही लेवल का आपका होना चाहिए. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर से आपके जो करेक्टर हैं, डायलॉग हैं, वो मैच करने चाहिए. जैसे आपका सब्जेक्ट सीरियस है तो आपके डायलॉग भी सीरियस होंगे, लाइक दैट. तो मैच्ड होने चाहिए. तो यहाँ पर कोरस, डायकोरम, डिकाडेंस, सरलियलिज्म. सो राइट आंसर इज बी, डायकोरम इज द राइट आंसर. ठीक है, कहते हैं ना कि डायकोरम मेंटेन करके रखो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. अ वाइड स्प्रेड मोड ऑफ रिलीजियस थिंकिंग दैट मैनिफेस्टेड द फेथ इन ह्यूमन रीजन. That characterize the European next question number 5. Next question number 5. A widespread mode of religious thinking that manifested the faith in human reason. आगे है
that characterize the European Enlightenment during the later 17th century and the 18th century. ऑप्शंस हैं यहाँ पर डीज्म, डेकोरम, डिकाडेंस, सररियलिज्म. So right answer is A, deism. Next, question number 6. It describes the practice of some Greek playwright, especially Euripides, to end a drama with a god lowered to the stage by a mechanical apparatus who by his judgment and command resolved the dilemma of the human character. ठीक है, ये ना एक ड्रामा की डिवाइस है जो कि ग्रीक के प्ले राइट थे इसे यूज़ किया करते थे, जिसमें सबसे पहले से स्टार्ट करने वाले थे यूरिपिडेस, जिसमें क्या होता है कि मैकेनिकल अपार्टस यानी मैकेनिकल किसी यंत्र के द्वारा भगवान को स्टेज पर उतारा जाता है एंड दी मतलब एंड ऑफ द प्ले, सो दैट ह्यूमन करेक्टर्स के जो डिलेमा हैं, जो उनके संशय हैं, वो सॉल्व हो सकें. सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर 4. ड्यूक्स एक्ट मैकीना, ह्यूब्रिस, न्यूटस और एनानॉर्सिस. सो राइट आंसर इज ए, ड्यूक्स एक्ट मैकीना. इसको बोलते हैं, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है गॉड आउट ऑफ द मशीन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. The term heteroglossia was introduced by the Russian literary theorist Dash in his 1934. ठीक है, टर्म है यहाँ पर हेट्रोग्लॉसिया, जिसे किसने जिसे मतलब रशियन लिटरेरी थ्योरिस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1934 में. तो वो रशियन लिटरेरी थ्योरिस्ट का नाम बताना है, कौन है वो. सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर मिखाइल बख्तिन, विक्टर सोलोवस्की. देखिए ये जो है रशियन नेम है तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा पता नहीं मुझे कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं. त्यूरी तिनीनो व्लादिमीर प्रॉप, इस तरीके के नाम है, ये रशियन थ्योरिस्ट हैं. तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मिखाइल बख्तिन. मिखाइल बख्तिन वो थ्योरिस्ट हैं, रशियन थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने ये जो टर्म है हेट्रोग्लॉसिया इसे इंट्रोड्यूस किया था. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. डैश इज ए लिटरेरी मोड. इसको फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है. इज अ लिटरेरी मोड दैट सबवर्ट एंड लिबरेट द एजम्पशन ऑफ द डोमिनेंट स्टाइल और एटमॉस्फेयर थ्रू ह्यूमर एंड केयर्स. इट ऑरिजिनेटेड एज कार्निवल इन मिखाइल बख्तिन प्रॉब्लम्स ऑफ डॉस्टोवस्की पोइटिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक लिटरेरी टर्म की बात हो रही है जिसे जो मिखाइल बख्तिन है, जिन्हें हमने अभी ऊपर पढ़ा था, रशियन थ्योरिस्ट हैं ये, इन्होंने अपना जो है नोवेल लिखा है एक डॉस्टोवस्की पोइटिक्स, उसमें उन्होंने ये टर्म दिया था जिसे आपको बताना है. कार्निवैलस्क्यू, हेट्रोग्लॉसिया, एक्सेंट्रिसिटी, कार्निवैलस्क्यू, हेट्रोग्लॉसिया, एक्सेंट्रिसिटी, ग्रोटेस्क्यू. सो राइट आंसर इज ए, कार्निवैलस्क्यू. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. In which work Bakhtin develops his view that the novel is constituted by a multiplicity of divergent and contending social voices that achieve their full significance only in the process of their dialogic interaction both with each other and with the voice of the narrator. ठीक है, यहाँ पर क्या है, किस वर्क में बख्तिन ने अपने विचार दिए थे कि जो एक कोई भी नोवेल वगैरह है, जैसे वो नोवेल लिखते थे, राइटर हैं, नोवेल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइवर्जेंट एंड कंटेंडिंग सोशल वॉइसेस. यानी कोई भी नोवेल का जब मतलब लिखा जाता है तो उसमें किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के जो है विचार नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे लोगों के विचार जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं. ये है उनका मतलब. तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं द विल्डो रोमन, द प्रॉब्लम ऑफ स्पीच जर्नर, द प्रॉब्लम ऑफ टेक्स्ट इन लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स इन द नोवेल. सो राइट आंसर इज डी, डिस्कोर्स इन द नोवेल.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज ए फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाई T.S. एलियट इन हिज डैश। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक फ्रेज है जिसे T.S. एलियट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था अपने ऐसे क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, द मेटाफिजिकल पोइट्स। सो राइट आंसर इज डी, द मेटाफिजिकल पोइट्स। द मेटाफिजिकल पोइट में इन्होंने ये जो टर्म है मतलब फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इसको कॉइन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी is a literary term first used by T.S. Eliot in his essay। ये वही क्वेश्चन है सेम कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक लिटरेरी टर्म बन गया है जिसे इंट्रोड्यूस किया था T.S. एलियट ने अपने ऐसे में। ऐसे का नाम है द मेटाफिजिकल पोइट। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ टर्म अप्लाइड टू रफ, heavy-footed and jerky versification। A term applied to rough, heavy-footed and jerky versification and also to verses that are monotonously regular in meter and tritely conventional in sentiment। It's often used deliberately for burlesque or comic effect। ओके यानी एक टर्म अप्लाई टू रफ हैवी फुटेड जर्की वर्सिफिकेशन, यानी कि ऐसा टर्म जो एक मतलब बहुत ही रफ साउंड देने वाली पोइम के ऊपर अप्लाई होता है, जो मोनोटोनसली होती है, अक्सर रेगुलर होती है, मीटर में क्या होती है वो उसमें कोई सेंटिमेंट नहीं होते और ये हमेशा रेगुलर होती है मीटर में, यानी कि फ्री वर्स में वो लिखी जाती है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सी वर्सिफिकेशन का यहाँ पे बात हो रही है। सो निट ट्वेलर्स, नॉनसेंस पोइट्री, पोइटिस्टा, डॉगरल। सो राइट आंसर इज डी, डॉगरल की यहाँ पर बात हो रही है। डॉगरल एक ऐसी जो है पोइट्री होती है जिसमें क्या होता है बहुत ही रफ और हैवी फुटेटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, the form of composition designed for performance in the theatre in which actors take the role of the characters, perform the indicated action and utter the written dialogue। ठीक है, द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, यह कंपोजिशन फॉर्म जिसे परफॉर्मेंस के लिए मतलब लिखा जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस कहाँ होनी है, थिएटर में। इन विच एक्टर टेक द रोल, जिसमें एक्टर्स का रोल होता है एंड करेक्टर्स का रोल परफॉर्म किया जाता है। द इंडिकेटेड एक्शन होता है एंड अटर द रिटन डायलॉग, और उसमें जो है जो डायलॉग होते हैं लिखे हुए वो बोले जाते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ ड्रामा की बात हो रही है। ड्रामा क्या है, एक ऐसी कंपोजिशन है जिसमें परफॉर्मेंस होती है। सो राइट आंसर इज ए ड्रामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, a closet drama is written in dramatic form with dialogue, indicated setting and stage direction, but is intended by the author to be dash rather than to be performed। तो यहाँ क्लोजेट ड्रामा की बात हो रही है। क्लोजेट ड्रामा जो लिखा जाता है ड्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है, उसका जो फॉर्म होता है बिल्कुल ड्रामेटिक होता है, ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है विद डायलॉग भी होते हैं, इंडिकेटेड सेटिंग वगैरह होती है अच्छी तरह से, मतलब वही ड्रामा के फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड स्टेज डायरेक्शन स्टेज के डायरेक्शन भी होते हैं, बट इज इंटेंडेड बाय द ऑथर टू बी रीड रादर देन टू बी परफॉर्म, लेकिन वो रीड करने के इंटेंशन से लिखा जाता है रादर देन परफॉर्म के इरादे से नहीं लिखा जाता, वो पढ़ने के इरादे से लिखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अ लेंथी स्पीच बाय ए सिंगल कैरेक्टर इन अ प्ले
Okay, lengthy speech by a single character in a play. When a character utters a monologue that expresses his or her private thought, it is called dramatic monologue. Soliloquy, backstory, exposition. So right answer is soliloquy. Next, question number 16. A mode of narrative widely employed by medieval poets. The narrator falls asleep, usually in a spring landscape, and dreams the event he goes on to relate. Often he is led by a guide, human or animal, and the events which he dreams are described at length. ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ नैरेटिव यानी कि जिसमें क्या होता था कि जो ये ऐसी फॉर्म है जो मेडिएवल जो एज है इंग्लिश लिटरेचर का, वहाँ पर नैरेटर क्या करता है कि जैसे वो सोते हुए जब हम सपना देखते हैं, उसी सपने को वो एक मतलब एक रिटन फॉर्म दे देते थे, अपने सपने को एक लिटरेचर मतलब वर्क के रूप में वो क्रिएट कर देते थे। उसे क्या बोला जाता है? ड्रीम नॉसिया, ड्रीम नॉस्टैल्जिया, ड्रीम एलेगरी, ड्रीम प्रोग्रेस। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, ड्रीम एलेगरी, ऐसे वर्क को ड्रीम एलेगरी बोलते हैं। जैसे कोई राइटर जिसने अपने मतलब सपने में देखा और फिर उसको वो नरेट कर रहा है, जैसे दंते का डिवाइन कॉमेडिया एक ड्रीम एलेगरी का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. The name applied to an intellectual movement and cultural ambience which developed in Western Europe during the 17th century and reached its height in the 18th. ऑप्शंस हैं रेनेसा, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, एनफोर्समेंट। So right answer is C, enlightenment. Next है question number 18. Traditional epics are also called folk epics और ठीक है, ट्रेडिशनल एपिक्स जो होते हैं उन्हें फोक एपिक्स कहा जाता है। उन्हें और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर प्राइमरी एपिक्स, सेकेंडरी एपिक्स, पायस एपिक्स, सैक्रेड एपिक। सो आंसर इज ए, प्राइमरी एपिक्स, यानी कि जो फोक एपिक्स जिनको बोला जा रहा है उन्हें प्राइमरी एपिक्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी एपिक्स वो एपिक होते हैं जो लिटरेरी एपिक्स होते हैं, यानी जिन्हें क्रिएट किया जाता है, और ये वाले नेचुरल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. लिटरेरी एपिक्स आर नोन एज, लिटरेरी एपिक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया कि जो फोक एपिक्स हैं वो प्राइमरी एपिक्स का एग्जाम्पल होते हैं, और जो लिटरेरी एपिक्स होते हैं वो सेकेंडरी एपिक्स होते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी, सेकेंडरी एपिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. एपिक सिमिली इज ऑल्सो कॉल्ड, एपिक सिमिली को और किस नाम से जाना जाता है? डैश। ऑप्शंस हैं यहाँ पर होमरिक सिमिली, मिल्टनिक सिमिली, दंते सिमिली, या फिर मेटाफोरिक सिमिली। सो राइट आंसर इज होमरिक सिमिली। ओके, जो एपिक सिमिली है उसे होमरिक सिमिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 21. एपिक थिएटर इज अ टर्म दैट द जर्मन playwright dash in the 1920s applied to his plays. ठीक है, एपिक थिएटर टर्म है जिसे जर्मन प्ले राइट ने अप्लाइड किया था। वो कौन से जर्मन प्ले राइट हैं जिन्होंने इसे अप्लाइड किया था इन 1920s? आपको बताना है। सो एंड्रीज मेंट, लूका मेयर्स, कैलसमैन, बर्टोल्ट ब्रेट, कौन से प्ले राइट हैं आपको बताना है। सो राइट आंसर इज डी, बर्टोल्ट ब्रेट एक जर्मन प्ले राइट हैं जिन्होंने इस टर्म को ठीक है कॉइन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग एंड insightful idea or thought about a specific subject expressed in a witty, satirical and funny manner.
ठीक है, शॉर्ट इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल आइडिया या फिर कोई विचार है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर है, इज एक्सप्रेस्ड इन ए विटी सैटायरिकल एंड फनी मैनर, जिसे विटी स्टेटमेंट माना जाता है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर एडमेटस, एपिग्राम, एफोरिज्म या फिर एपिग्राफ। सो राइट आंसर इज बी, एपिग्राम। एपिग्राम एक विटी सैटायरिकल एंड फनी मैनर में बोला गया स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अ क्रिश्चियन फीस्ट डे दैट सेलिब्रेट द रेवलेशन ऑफ गॉड इनकारनेट एज जीसस क्राइस्ट। ठीक है, क्रिश्चियन फीस्ट डे जिसमें गॉड रेवलेशन को सेलिब्रेट किया जाता है जैसे जीसस क्राइस्ट का हुआ था, उसे क्या बोलते हैं? उसको कैरोल, क्रिस्टोफेनी, रिलीजियोफेनी या एपीफेनी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज डी, एपीफेनी बोला जाता है उसको, क्रिश्चियन फीस्ट डे को। नेक्स्ट है 24, एपीथैलेमियन और इन द लैटिन फॉर्म एपीथैलेमियम इज ए पोम रिटन टू सेलिब्रेट ए। ठीक है, एपीथैलेमियन इंग्लिश में बोलते हैं और जिसे लैटिन में एपीथैलेमियम बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ग्रीक टर्म है और ये इंग्लिश टर्म है। वो पोएम जो सेलिब्रेट करती है बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी, ब्यूरियल सेरेमनी। सो राइट आंसर इज बी। ठीक है, एपिथैलेमियन एक मैरिज सेलिब्रेट करने की पोएम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एन एडजेक्टिव और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समबडी, समथिंग, कैरेक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्पेशली इन ऑर्डर टू से समथिंग गुड और बैड अबाउट समबडी, समथिंग। ठीक है, एन एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव या फिर कोई फ्रेज जिसे यूज़ किया जाता है किसी को प्रेज करने के लिए। समबडी यानी कोई पर्सन हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई कैरेक्टर, यानी मतलब एक्स वाई जेड, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अब वो क्वालिटी गुड हो सकती है, बैड हो सकती है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वर्ब, एडजेक्टिव, एपीथेट, एपीफेनी। सो राइट आंसर इज सी, एपीथेट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ ब्लंट वन दैट इज फेल्ट टू बी डिसएग्रीएबल और एम्बैरेसिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन, कोई इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन है, उसकी जगह हम जो सुनने में कैसा लगता है, भद्दा लगता है, उसकी जगह हम कुछ उसे सॉफन करके अगर हम बोलें, जैसे किसी हार्श या क्रूड स्टेटमेंट को अगर हम सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे कोई मर जाता है, इसका एक मतलब क्लीशे एग्जाम्पल है कि कोई अगर मर जाएगा तो मरने की जगह हम उसे बोलते हैं पास अवे, है ना। ऐसे ही हम टॉयलेट के लिए बोलते हैं वॉशरूम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अ टर्म अप्लाइड टू लैंग्वेज विच स्ट्राइक द ईयर एज स्मूथ, प्लीजेंट, म्यूजिकल। ठीक है, जो एक टर्म यानी कि कोई भी लैंग्वेज या पोइट्री है जिसमें क्या होता है, जो कानों को अच्छा लगे, जिसे सुनकर कानों को अच्छा लगे, स्मूथ हो, प्लीजेंट हो, म्यूजिकल हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यूफोनी, सिम्फोनी, कैकोफोनी, सिंटोनी। सो राइट आंसर इज ए, यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है गुड साउंड ना, मधुर आवाज़। मधुर आवाज़ ही तो हमारे कानों को स्मूथ, प्लीजेंट और म्यूजिकल लगेगी, हार्श आवाज़ तो लगेगी नहीं। नेक्स्ट है 28, अ मिक्सचर ऑफ लाउड, अनप्लीजेंट साउंड, नॉइज। ठीक है, ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पर बात हो रही थी प्लीजेंट, स्मूथ, म्यूजिकल, और यहाँ पर बात हो रही है अनप्लीजेंट साउंड की। ऑप्शंस हैं यूफोनी, सिम्फोनी, कैकाफोनी, सिंटोनी। सो राइट आंसर इज सी, कैकोफोनी। ठीक है, यानी कि वो साउंड जो लाउड है, बहुत तेज़ है, अनप्लीजेंट है, कानों को भा नहीं रही हमारे, और नॉइज से भरी हुई है, उसे हम कैकोफोनी बोलते हैं। यूफोनी इज़ ए गुड साउंड एंड कैकोफोनी इज़ ए बैड साउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अ पेक्यूलियर मैनर्ड स्टाइल ऑफ इंग्लिश prose that takes its name from a prose romance by John Lyly
It consists of a preciously ornate and sophisticated style, employing a deliberate axis of literary devices such as antithesis, alliteration, repetition and rhetoric questions. ठीक है, एक लिटरेचर का ऐसा स्टाइल इंग्लिश में जिसमें बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ऑर्नेट स्टाइल में लिखा जाता है, जिसमें कि यूज़ किया जाता है ऐसी डिवाइसेस जैसे एंटीथीसिस का यूज़ मिलेगा, एलिटरेशन होगा, रिपीटिशन होगा, रिटोरिकल क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, इसका यूज़ एक्सेसिव यूज़ होता है इसका, तो इसे बोलते हैं यूफेमिज्म, यूफुइज्म, यूफोरिया या फिर ईडुटेरिया। सो राइट आंसर इज बी, यूफुइज्म। ठीक है, यूफुमिज्म इज ए स्टाइल ऑफ लिटरेचर जिसमें बहुत सारा मतलब ऑर्नेट स्टाइल में जिसमें लिखा जाता है। एक्सिस यूज होता है फिगर ऑफ स्पीच का, जिसे क्रिएट किया था यूनिवर्सिटी विद जॉन लिली ने। Next है question number 30. In literary criticism, dash is overly ornate prose text that may disrupt a narrative flow by drawing undesirable attention to its own extravagant style of writing, thereby diminishing the appreciation of the prose overall. So options हैं यहाँ पर purple prose, blue prose, yellow prose, pink prose. So right answer is A, purple prose. Next है question number 31. A modernist movement initially in poetry and painting originating in northern Europe around the beginning of the 20th century. Its typical trait is to present the world solely from a subjective perspective, distorting it radically for emotional effect in order to evoke moods or ideas. The artists in the moment have sought to express the meaning of emotional experience rather than physical reality. ऑप्शंस हैं यहाँ पर इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, सररियलिज्म। सो राइट आंसर इज बी, एक्सप्रेशनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. The medieval dash was a short comic or satiric tale in verse dealing realistically with the middle class or lower class characters and delighting in the rebelled. Its favorite theme is the cuckolding of a stupid husband. ठीक है, जिसकी थीम थी कुकोल्डिंग करना, है ना, स्टूपिड हस्बैंड के ऊपर। ऑप्शंस हैं मीरियज, फेवल्यू, फेबल, टैबल्यू। सो राइट आंसर इज बी, फेवल्यू। ये एक पोइट्री टाइप होता है जिसकी थीम होती है कुकोल्डिंग ऑफ ए स्टूपिड हस्बैंड। ठीक है, जो कि फ्रांस में ऑरिजिनेट हुई थी। एफ फॉर फेवल्यू होता है, एफ फॉर फ्रांस होता है, ऐसे इसको कनेक्ट करके याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. हु इन हिज थ्योरी ऑफ पोइट्री मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, फैंसी एंड इमेजिनेशन की थ्योरी किसने दी है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सूथी, मैथ्यू आर्नोल्ड। सो राइट आंसर इज बी, एस.टी. कॉलरिज गेव द थ्योरी ऑफ पोइट्री, made the distinction between fancy and imagination. Next question number 34. The modern feminist movement origin from. Options हैं यहाँ पर The Second Sex by Simone de Beauvoir, The Black Woman, an anthology edited by Cat, A Room of One's Own by Virginia Woolf, Sexual Politics, Cat Millett. So right answer is A, The Second Sex by Simone de Beauvoir. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. गायनोक्रेटिसिज्म और गायनोक्रेटिक्स इज द टर्म। ठीक है, गायनोक्रेटिसिज्म और गायनोक्रेटिक्स एक टर्म है कॉइंड इन दी 70s में, जिसे कॉइन किया गया बाई डैश टू डिस्क्राइब ए न्यू लिटरेरी प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन लिटरेचर। ठीक है, एज ए
जिसका निर्माण किस लिए किया गया, एक एज ए फीमेल फ्रेमवर्क के रूप में इसे बनाया गया, जिसमें वोमेंस लिटरेचर को एनालाइज किया जाता है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे beauvoir, कैट मिलेट, एलिस साल्टर। सो राइट आंसर इज डी, एलिस साल्टर coined the term gynocriticism or gynocritics. Next है question number 36. Phallocentrism is a recent term coined by Dash to refer to the privileging of the masculine phallus in the construction of meaning. Sigmund Freud, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Carl Jung. So right answer is B, Jacques Derrida. Next question number 37. Who wrote a book Truth, Fiction and Literature, A Philosophical Perspective 1994? किसने लिखी है ये बुक ट्रूथ फिक्शन एंड लिटरेचर? पीटर लैमार्की एंड स्टीन हॉगम ऑल्सन, मॉन्रो सी बार्टसली, विलियम जोसेफ रूनी, ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ए, पीटर लैमार्की एंड स्टीन हॉगम ऑल्सन ने ये लिखी है. ठीक है, ये रशियन और जर्मन नेम है, सो इन्हें प्रोनाउंस करने का तरीका सही से वाकई में किसी को ही नहीं पता कि कैसे इन्हें प्रोनाउंस किया जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. The collective name applied to saying verbal compositions and social rituals that have been handed down solely or at least primarily by word of mouth and example rather than in written form. Mythology, mythos, tradition, folklore. So right answer is D, folklores. Next question number 39. Folk plays performed by troupe. Folk plays ट्रूप के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे ऑफ एमेचर एक्टर, जो कैसे एक्टर होते थे? अमेचर, ट्रेडिशनली और मेल, और सभी ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से सभी मेल होते थे, यानी फीमेल नहीं होती थी. नोन एज ममर्स और गाइजर्स. ममर्स प्लेज, ड्रमर्स प्लेज, गुमर्स प्लेज, ऑल ऑफ दी. सो राइट आंसर इज ए, ममर्स प्लेज बोला जाता था इन्हें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. अ शॉर्ट नैरेटिव इन प्रोज ऑफ अननोन ऑथरशिप विच हैज़ बीन ट्रांसमिटेड. ठीक है, शॉर्ट नैरेटिव प्रोज मतलब इन प्रोज में ऑफ अननोन ऑथरशिप विच हैज़ बीन ट्रांसमिटेड, जिसे ट्रांसमिटेड किया जाता है ऑरली. मेनी ऑफ दीज टेल्स इवेंचुअली अचीव रिटन फॉर्म. ठीक है, जिसमें से बहुत सी फॉर्म अब हमें लिखित रूप में भी मिलती हैं. फोकटेल, फोकलोर, पैंटोमाइम, रेवल्स. सो राइट आंसर इज ए, फोकटेल. ठीक है, फोकटेल होते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. अ ब्रांच ऑफ लिटरेरी थ्योरी, मतलब लिटरेचर की एक ब्रांच है ये, एंड क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म की ब्रांच कह लो, विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट, ठीक है, जो कोई भी टेक्स्ट है आपके लिटरेचर का, उसके स्ट्रक्चर से डील करती है. इट मीन्स दैट एक्सटर्नल एजेंट आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, जिसका मानना होता है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो टेक्स्ट के आउटसाइड है, आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन. जो आउटसाइड है जो टेक्स्ट के, मतलब जो भी एजेंट है उसको कंसीडर इसमें नहीं किया जाता. ऑल दी थिंग्स अबाउट कल्चर, पॉलिटिक्स एंड दी ऑथर्स इंटेंट और सोशल इन्फ्लुएंस आर एक्सक्लूडेड. ऑप्शंस हैं यहाँ पर हिस्टोरिसिज्म, कल्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन. सो राइट आंसर इज सी, फॉर्मलिज्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. अ मूवमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन emerged in Russia during the second decade of 20th century and remained active until about 1930. The followers emphasized first and foremost the autonomous nature of literature and consequently the proper study of literature as neither a reflection of the life of its author nor as a byproduct of the historical or cultural milieu in which it was created. ऑप्शंस हैं यहाँ पर रशियन फॉर्मलिज्म, डिफेमिलराइजेशन, वैनेवा स्कूल,
फ्रैंकफर्ट स्कूल। सो राइट आंसर इज ए, रशियन फॉर्मलिज्म की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, the artistic technique of presenting to audience common thing in an unfamiliar or strange way so they could gain new perspective and see the world differently। ठीक है, आर्टिस्टिक टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग यानी कि कोई भी चीज़ दिखाने का एक नया तरीका जिसमें ऑडियंस कॉमन थिंग्स से मतलब जो है अनफेमिलियर होती है और स्ट्रेंज वे में उनको दिखाया जाता है, जिससे कि वो जो ऑडियंस है वो कुछ नया सीख सके, यानी कि जो वर्ल्ड है उसको देखने का जो प्रोस्पेक्टिव है उसको बदल सके, एटीट्यूड को बदल दे, यानी कि जो ऑडियंस है उसको कहते हैं फॉर्मलाइजेशन, डीफेमिलाइजेशन, सोविज, फैंक, फ्रूटिज्म। सो राइट आंसर इज बी, डीफेमिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन अ बुक इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, कोई किताब जब आपके सामने खुलती है, द पेज ऑन द राइट इज कॉल्ड अ डैश एंड द पेज ऑन द लेफ्ट इज कॉल्ड ए डैश। ठीक है, जब बुक का पेज राइट साइड में खुलता है उसे रेक्टो कहते हैं और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे वर्सो कहते हैं। ठीक है, ये पेज का मोड है, रेक्टो एंड वर्सो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इट इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये क्या है, एक ओपन फॉर्म है पोइट्री की, विच इन इट मॉडर्न फॉर्म अरोज थ्रू द फ्रेंच वर्स लिब्रे फॉर्म। इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर, जिसमें कोई मीटर का यूज़ नहीं होता, पैटर्न, राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न। इट दस टेंड टू फॉलो द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। ठीक है, ये एक ऐसा, इसमें कोई ट्रेंड को फॉलो, मतलब मीटर वगैरह, पैटर्न, रिदम, कोई ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता इस फॉर्म के अंदर। इसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हीरोइक वर्स या फिर फुल वर्स। सो राइट आंसर इज ए, सॉरी, राइट आंसर है फ्री वर्स। ठीक है, ये ओपन वर्स इसी को बोलते हैं, फ्री वर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन वर्स, और वर्स लिब्रे इसको बोलते हैं, जिसमें कोई रेगुलर मीटर को फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अ टर्म फ्रेंच इन ओरिजिन। ठीक है, एक फ्रेंच टर्म दैट डिनोट टाइप और क्लासेस ऑफ लिटरेचर। एक फ्रेंच टर्म है जो लिटरेचर का जो टाइप है, क्लास है, वो बताता है कि ये लिटरेचर कौन से टाइप का है, इसका क्लास क्या है, उसको जानर बोलते हैं, फॉर्म्स, एड्रेंस या फिर रेबल्स। सो राइट आंसर इज ए, उसको बोलते हैं जानर, यानी कि लिटरेचर की विधा या उसको क्लास डिस्क्रिप्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं कि ये जो पार्टिकुलर लिटरेचर है ये फॉर्म है, तो उसे जॉनर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच वॉज inaugurated Horace Walpole, The Castle of Otranto, a Gothic story, 1764. The subtitle refer to its setting in the Middle Ages and flourished through the early 19th century. The fiction had a prevailing atmosphere of mystery and terror. Options are Gothic fiction, Gothic romance, frightening fiction, both A and B. So right answer is D, both A and B. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अ टर्म अप्लाइड टू 18th सेंचुरी पर अप्लाई किया गया टर्म पोइट हु रोट मीडिएटिव पोइम्स, जिन्होंने मीडिएटिव पोइम्स लिखी थी, यूजुअली सैट इन ए ग्रेवयार्ड। ठीक है, उनकी जो मीडिएटिव पोएम है उनकी सेटिंग होती थी ग्रेवयार्ड, ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी इन मूड्स विच रेंज फ्रॉम एलिजियाक पेंसिवनेस टू प्रोफाउंड ग्लूम। ठीक है, उनकी जो पोएम्स होती थी वो ग्लूमी से भरी होती थी। कौन से पोइट्स माने जाते हैं वो? रोमांटिक पोइट, क्लासिकल पोइट्स, वार पोइट या फिर ग्रेवयार्ड पोइट। सो राइट आंसर इज डी, ग्रेवयार्ड पोइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज ए हाईआर्कियल स्ट्रक्चर all matter and life thought by medieval Christianity to have been decreed by God. The chain begins with God and descends through angles human, animal and plant to minerals. Options हैं यहाँ पर, the great chain, the great chain of being, the great chain of speaking,
The great chain of eating, the great chain of creation. So right answer is A, the great chain of being. Next, question number 50. The term refers to the vindication of God. It is to answer the question of why a good God permit the manifestation of evil, thus resolving the issue of the problem of evil. Options हैं theodicy, theocry, theomedicy, theomania. So right answer is A, theodicy. Next है question number 51. One common form of hamartia in Greek tragedy was. ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी की जो हैमरेशिया है उसकी कॉमन फॉर्म क्या है? कैथारसिस, ह्यूब्रिस, ट्रेजिक हीरो या परगेशन. सो राइट आंसर इज बी, ह्यूब्रिस इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ ग्रीक हैमरेशिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52. अ सेल्फ सेंटर पर्सनैलिटी style characterized as having an excessive interest in one's physical appearance or image and an excessive preoccupation with one's own needs often at the expense of others. ठीक है, सेल्फ सेंटर पर्सनैलिटी जिसे खुद से बहुत प्यार होता है. ऑप्शंस हैं यहाँ पर नार्सिसिज्म, पायरिक विक्ट्री, हेरिटेबिलिटी, ग्रांडियोसिटी. सो राइट आंसर इज ए, नार्सिसिज्म. ये एक ऐसा जो है आइडियोलॉजी है जिसमें जो सेल्फ सेंटर्ड होती है. नेक्स्ट है 53. अ विक्ट्री दैट कम्स एट ए ग्रेट कॉस्ट, perhaps making the ordeal to be not worth it. It relates to the king of Epirus who defeated the Romans in 279 BC but lost many of his troops. ठीक है, कौन सी विक्ट्री की यहाँ बात हो रही है? टायरेनिकल विक्ट्री, पायरिक विक्ट्री, हेरिटेबिलिटी, ट्रेजिक विक्ट्री. सो राइट आंसर इज बी, पायरिक विक्ट्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. द टर्म डेजिग्नेट द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग. ठीक है, फिक्शनल राइटिंग दैट रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ. यानी ऐसा लिटरेचर जिसमें आइडियल मतलब फिक्शनल राइटिंग होती है जिसमें एक ऐसा राज्य रिप्रेजेंट किया जाता है जो बहुत आइडियल है. यानी एक तरह से कह लो राम राज्य है जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट रियलिटी में ऐसा राज्य नहीं हो सकता. ये काल्पनिक होता है. ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं. लेकिन कैसा होता है? ये पॉलिटिकल होता है, सोशल वे ऑफ लाइफ होता है. यानी सोशल वे और पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ जो आइडियल हो, जिसे फिक्शनल वे में लिखा जाता है. ठीक है, एक फिक्शनल स्टेट क्रिएट किया जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि वह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली चल रही हैं. सो राइट आंसर इज सी, यूटोपिया. और इसका जस्ट अपोजिट होता है डिस्टोपिया. डिस्टोपिया भी इमेजिनरी वर्ल्ड होता है बट वो आइडियल नहीं होता, नॉन आइडियल होता है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. एन इमेजिन वर्ल्ड और सोसाइटी इन विच पीपल लीड रेज्ड. ठीक है, एक ऐसा इमेजिन वर्ल्ड जहाँ पर सोसाइटी या फिर लोग कैसे रह रहे हैं? रेज, दुखी हैं, डीह्यूमनाइज्ड हैं, फियरफुल हैं, डरे हुए हैं. हाईलैंड, मिडलैंड, यूटोपिया, डिस्टोपिया. तो मैंने अभी बताया कि जो आइडियल स्टेट है, मतलब आइडियल राज्य की कल्पना, वो तो यूटोपिया, और जिसमें आइडियल नहीं है, लोग डरे हुए हैं, है ना, दुखी हैं, वो डिस्टोपिया होता है. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. Quick and usually funny answer and remark in conversation. Satire, irony, conceit, repartee. So right answer is D, repartee. Next है क्वेश्चन नंबर 57. Comic utterance or a comic appearance or mode of behavior is called. ठीक है, कॉमिक अटरेंस और कॉमिक अपीयरेंस और मोड वाला जो बिहेवियर होता है उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमर, सटायर, कॉमेडी, रेपार्टी. सो राइट आंसर इज ए, ह्यूमर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. एन आर्टिस्टिक एंड सोशल मूवमेंट दैट ऑरिजिनेटेड इन इटली, जो इटली में ऑरिजिनेट हुआ था इन द अर्ली 20th century. इट एम्फेसाइज डायनामिज्म, स्पीड, technology, youth, violence, and objects such as the car, the airplane, and the industrial city.
ऑप्शंस हैं यहाँ पर इमेजिज्म, सिम्बोलिज्म, फ्यूचरिज्म, वर्टिसिज्म। सो राइट आंसर इज सी, फ्यूचरिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। A London-based modernist art movement formed in 1914 by the writer and artist Wyndham Lewis. Imagism, symbolism, futurism, vorticism. So right answer is D, vorticism. Next and last question of this practice paper. Next है 60. An art movement of the European avant-garde in the early 20th century. Its early centers were in Zurich, Switzerland at the Cabaret Voltaire. 1916 developed in the reaction to the World War I. The artist associated with the movement rejected the logic, reason and aestheticism of modern capitalist society, instead expressing nonsense, irrationality and anti-bourgeois protest in their work. Imagism, Dadaism, Symbolism, Vorticism. Right answer is D, Dadaism. This is all about this practice paper. 60 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस पेपर में जो हमने कर लिए. For watching this video, thank you so much.